ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੀਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਨਵੇਂ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰੰਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ UPSC ਆ, PPSC, SSC ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੂਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕਿਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ MCQ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਔਰ UPSC ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਫੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਟਿਕ GK ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਆ ਦੋ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, UPSC ਔਰ PPSC ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਲੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਫॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਓਨਲੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, 2 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਜ਼ ਹੈਲਡ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਜ਼ ਹੈਲਡ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਕੋਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ UPSC ਦੇ ਦੁਆਰਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਟਡ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਏ ਦਾ MP ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ MLA ਆਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਏ MPs ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ MP ਦੇ PCS ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਰਡ ਫੜਨਾ, ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ 4 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਆ ਬੱਚੇ, ਸਿਰਫ 2 ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ UPPCS ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਲੈਕਟਸ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ। 4 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ UP ਦੇ PCS ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ PCS ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਏ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟਰਲ ਕਾਲਜ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਤੇ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੈਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ 7 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ।
चलो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਪੋਸਟ ਐਬਸੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਥੰਬਨੇਲ ਤੇ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 14ਵੇਂ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਇਹ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਮਿਦ ਅਨਸਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਇੰਨਾ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 14ਵੇਂ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ? ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਕਸ ਅਫੀਸ਼ੀਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸ ਅਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸ ਅਫੀਸ਼ੀਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸ ਅਫੀਸ਼ੀਓ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਚਲੋ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੋਪ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ, 2 ਵਾਰੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ 2 ਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਫਸਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮਈ 13, 1952 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆ ਜੇ ਵੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਹੂ ਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਜ਼ ਹੈਲਡ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਬੀ ਆ ਜੂ 1 ਤੇ 3, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨੋ, ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੈਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਊਗਾ? ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿੱਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉੱਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ? ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਖਵਾਉਂਦਾ? ਸਹੁੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਨਿਓਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ।
मतलब कारजकाल किन्ने समय के लिए काम करते हैं, तो बच्चे इन्हां दा टनयोर हुंदा 5 ईयर। ठीक है, 5 साल के लिए इन्हों चुनिया जाता। तो हुण आपां गल करते हैं इन्हां दी इलैक्शन की। ठीक है, तो इन्हां दी इलैक्शन किवें हुंदी आ, डायरैक्ट या फिर इनडायरैक्ट। तो इन्हां दी इलैक्शन हुंदी आ इनडायरैक्ट, बिकॉज आपां कदे भी आप नहीं चोण करते, अपने द्वारा चुने हुए मैंबर ने जिहड़े MP ऑफ राज्य सभा लोक सभा वो पार्टिसिपेट करते हैं इहदे। ठीक है, तो कौन पार्टिसिपेट करता, MP ऑफ लोक सभा, MP ऑफ राज्य सभा। क्लीयर। तो इस तो बाद हुंदा चलो एक बार चुन गया भी की दोबारा री इलैक्ट हो सकते हैं। यस, क्योंकि आप पहले ही गल करके हटे भी राधा कृष्ण 2 बार बन चुके हैं, उस तो बिना डॉक्टर हामिद अंसारी भी 2 बार बन चुके हैं। ठीक है, तो बच्चे दूसरे क्वेश्चन के नाल तुहानूं इन्ने फैक्ट होप सो क्लीयर हो गए होणगे। तो इसका करैक्ट आंसर है बी, पहला और तीसरा। चलो अगला देखो, हाउ इज़ द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इलैक्टेड। तो जे तुसीं पहला वाला क्वेश्चन बच्चे हुण ध्यान दे नाल सुनिया होना तो तुहानूं ये चीज़ क्लीयर हो जाती इत्थे। तो भी डायरैक्ट नैशनल इलैक्शन हुंदियां ने, तो बच्चे पहला तो नहीं है हो सकता। तो देखो थ्रू इलैक्शन बाय द MP ऑफ लोक सभा एंड राज्य सभा। मैं तुहानूं हुण पहले वाले उहदे विच ही दस के हटिया बच्चे। ठीक है, तो इसका करैक्ट आंसर की आ, इलैक्शन ऑफ द MP ऑफ लोक सभा एंड राज्य सभा। ठीक है, तो डी आंसर इत्थे अपना की हो जाऊगा, एक मिनट बच्चे, डी आंसर अपना हो गया बिल्कुल करैक्ट आंसर। क्लीयर। चलो हुण आपां इलैक्शन देख ली भी इनडायरैक्ट मैथड दे नाल हुंदी है, तो पार्टिसिपेट कौन करते हैं, MPs कित्थों, लोक सभा वाले भी करते हैं, राज्य सभा वाले भी करते हैं। पर जे हटाउण दी गल आउंदी आ तो उदों पहलां रैजोल्यूशन कित्थे रखिया जाऊगा, राज्य सभा दे विचों, फिर लोक सभा दे विच जाएगा। क्लीयर। चलो हुण आपां गल कर लैंदे बच्चे भी इन्हां दे सोर्स दी। आपां हरेक चीज़ का सोर्स देखते हैं भी ये असीं कित्थों फॉलो किया इन्हां नूं, तो असीं इन्हां नूं फॉलो किया USA तो। ठीक है, तो एक आर्टिकल देख लैंदे हुण नाल ही इन्हां दे आपां। तो आर्टिकल 63 की गल करिए, आर्टिकल 63 की कहंदा भी साडे वाइस प्रेजिडेंट आ जिहड़ा वो होना चाहिदा। फिर इस तो बाद आर्टिकल आउंदा 64 64। तो 64 की कहंदा भी जिहड़ा वाइस प्रेजिडेंट होऊगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या फिर चेयरपर्सन होऊगा किहदा, राज्य सभा का। तो आर्टिकल 63 और आर्टिकल 64 दोनों थोनों आई थिंक क्लीयर हो गए होणगे। तो सोर्स इहदा USA आ। आर्टिकल 63 होना चाहिए वाइस प्रेजिडेंट, 64 दे विच कहंदे आ भी जिहड़ा वाइस प्रेजिडेंट होऊगा वो वाइस प्रेजिडेंट होण दे नाल नाल राज्य सभा दे चेयरमैन भी होणगे। ठीक है, उस तो बाद आपां गल करिए जे आर्टिकल 65 दी। तो 65 की कहंदा भी यह एक्टिंग प्रेजिडेंट बनणगे, एक्टिंग प्रेजिडेंट बनते। एक्टिंग प्रेजिडेंट ये हुंदा भी जदों प्रेजिडेंट मान लो किसी कारण वश नहीं आपकी पोस्ट पर आ सकते, वैसे प्रेजिडेंट की पोस्ट खाली नहीं रखी जा सकती। ठीक है, किसी भी हालात दे विच वो पोस्ट खाली नहीं छड्डी जा सकती। मान लो हुण प्रेजिडेंट साहब है नहीं गे तो उन्हां दी जगह के उत्ते वाइस प्रेजिडेंट एज अ प्रेजिडेंट काम करनगे, तो उन्होंने कहा जाता एक्टिंग प्रेजिडेंट। ठीक है, तो बच्चे एक्टिंग प्रेजिडेंट के बारे तुसीं ये चीज़ फैक्ट ध्यान दे विच रखना। ठीक है, तो जदों ये एक्टिंग प्रेजिडेंट के वजों काम करनगे, आर्टिकल 65 कहंदा तो यह उदों वाइस वांग काम नहीं कर सकते। फिर ये मतलब कि उप राष्ट्रपति के तरह काम नहीं करते, उन्होंने तनख्वाह अलाउंस भत्ते जो भी मिलना वो राष्ट्रपति के वांग मिलूगा, उप राष्ट्रपति के वजों नहीं मिलता। ठीक है, चलो ये चीज़ भी तुहानूं क्लीयर आ। और सब तो अपने हाईएस्ट ऑफिस किहदा गा, प्रेजिडेंट का, और दूसरे नंबर पर सैकेंड हाईएस्ट ऑफिस किहदा गा, वाइस प्रेजिडेंट का। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की गल कर रहे हैं आप। चलो होप सो तुहानूं ये चीज़ क्लीयर हो गई होगी। ठीक है, तो इस तो बाद आउंदा बच्चे जदों इन्हां नूं हटाया जाता तो हटाउण तो पहलां 14 दिन का नोटिस देना जरूरी हुंदा इत्थे। ठीक है, 14 दिन पहलां उन्हां नूं इनफॉर्म करना हुंदा, तो इस तो बाद मेजोरिटी दे नाल राज्य सभा दे विच रखिया जांदा, फिर लोक सभा दे विच पास करा के ते अगे मतलब प्रोसीजर आ जिहड़ा उहनूं चलाया जांदा। तो आर्टिकल 63 64 65 तुहानूं तीनों होप सो क्लीयर हो गए होणगे। तो जिहड़ा इन्हां नूं हटाउण दा जे स्पैशल पुछ लिया जाए तो 67 दे सब आर्टिकल B दे विच इन्हां दे बारे गल कीती गई है। एक पॉइंट ये याद रखना भी किसी भी हाउस का मैंबर नहीं हुंदा। ठीक है, तो ना ही लोक सभा का ना ही राज्य सभा का। अगर पहलां तो किते है भी आ तो जदों इधर वाइस प्रेजिडेंट हो गए दैन उन्होंने अपनी वो जिहड़ी पोस्ट आ वो वकैंट करनी पैनी है, खाली
छड्डनी पैनी आ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नॉट करैक्ट पूछा इन्होंने। तो बच्चे ध्यान दे नाल आपां स्टेटमेंट देखा। तो देखो रिमूवड तो अ फॉर्मल इंपीचमेंट, पहला तो बच्चे इंपीचमेंट वर्ड आ गया, तो इत्थों गलत आ। ठीक है, इंपीचमेंट क्यों गलत आ? बिकॉज इंपीचमेंट साडे कल्ले प्रेजिडेंट साहब के लिए वरत्या गया शब्द पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के विच। उस तो बिना आपां कहने हैं ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो इंपीचमेंट लग गई, उन्होंने लिए भी इंपीचमेंट वर्ड नहीं यूज़ किया गया। ठीक है, तो चौथी ऑप्शन तो नॉट करैक्ट आ ना। तो पहला देखो ये है नहीं, ये है नहीं, दो ऑप्शन तो वैसे ही आप एलिमीनेट कर सकते हैं। उस तो बाद देखो हुण अ मैंबर ऑफ द स्टेट लैजिसलेचर कैन बी कैंडीडेट फॉर दिस ऑफिस, और इस तो बाद पहली इन ऑर्डर टू द वाइस प्रेजिडेंट अ परसन मस्ट बी क्वालीफाइड फॉर इलैक्शन एज मैंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। तो बच्चे आ भी इनकरैक्ट आ। ठीक है, तो आ तो इत्थों आ भी आ ही सकते हैं। ठीक है, कैंडीडेट आ के सकते हैं, बाद दे विच इन्हां नूं खाली करनी पैंदी है सीट। ठीक है, स्टेट लैजिसलेचर वाले। तो दूसरा तो भी चलो हुण आपां देखते हैं, एक तो अपनी चौथा तो एक पहला गलत आ। क्यों गलत आ? क्योंकि हाउस ऑफ पीपल इहदियां हुण आपां जे गल करिए योगतावां दी, क्योंकि पहली स्टेटमेंट अपनी योगतावां दे नाल सॉल्व होनी सी। तो बच्चे देखो यदि क्वालीफिकेशन की आपां जे गल करिए, पहले नंबर पर तो यह होने चाहिए सिटीजन। चलो सिटीजन तो हाउस ऑफ पीपल वाले भी होंगे मन ली। तो दूसरे नंबर पर जोड़ा एज वाला ना, एज वाला चक्कर पैंदा, क्योंकि ये लिए थोड़ी मिनीमम एज 35 होनी जरूरी आ। ओके, तो मतलब कहने तो भाव यह भी राज्य सभा दियां शर्तां पूरीआं करनियां चाहिए ना कि लोक सभा दियां। तो ये इत्थे कहंदे आ भी हाउस ऑफ पीपल जानी कि लोक सभा। तो ये पहली ऑप्शन गलत होगी, इन्होंने पूछा सी नॉट करैक्ट, सो पहली करैक्ट इनकरैक्ट आ तो चौथी इनकरैक्ट आ। तो 1 ते 4 आपनूं सी ऑप्शन दे विच मिलदे ने, तो बाकी ऑप्शन गलत आ। सी इहदी करैक्ट आंसर आ। सिटीजन होना चाहिए, मिनीमम 35 साल होनी चाहिए। मैक्सीमम उम्र बारे कोई इन्होंने गलबात नहीं की हुई संविधान ने। तो राज्य सभा के मैंबर बनने दी योग्यतावां ने जिन्नियां सारियां इन्हों पूरियां होनियां चाहिए ने। ठीक है, तो जे इन्हां दी गल करिए आपां टर्म की किन्ने साल दी आ, पहलां वाले आपां उहदे च देख के हटे 5 साल दी आ, और यह 67 ए दे विच दस्सिया होया। तो भी उदों तक ये रह सकते हैं जदों तक अगला आके इत्थे सामभदा नहीं लैंदा ना वाइस प्रेजिडेंट की पोस्ट नूं, उन्ना चिर इन्हां नूं रहना ही पऊगा। ठीक है, चलो जे रिमूवड की गल करिए तो 67 बी दे विच इन्हां दे रिमूव की गल की गई है, इन्हां नूं हटाउण दी 67 बी दे विच। मतलब अगे जे सब आर्टिकल तुहानूं आ भी जाते हैं ना, तां करके बच्चे मैं तुहानूं करवा रहा, क्योंकि कई बार स्टैटिक जी के आपां थंबनेल ते लिखिया तो उत्थे एवें दे स्टैटिक आर्टिकल तुहानूं पुछे जाते हैं, सो तां करके करवाए जा रहे हैं। 5वां क्वेश्चन देखो, हू अमंग द फॉलोइंग इलैक्ट द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो इन्हां दे विचों मैंबर ऑफ लोक सभा, राज्य सभा, मैंबर ऑफ लैजिसलेटिव असैंबली, मैंबर ऑफ लैजिसलेटिव कौंसल। तो बच्चे ये तो जोड़ा अपना करैक्ट आंसर है बच्चे वो हैगा मैंबर ऑफ लोक सभा, मैंबर ऑफ राज्य सभा। क्लीयर? कौन 1 एंड 2, तो यदा करैक्ट आंसर की आ ए ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट आंसर यदा हैगा। चलो हुण देखते हैं आपां मिनीमम एज कितनी आ, 35 साल होनी चाहिए आ, तो मैक्सीमम एज हैगी आ नहीं, क्योंकि अपना संविधान ये बारे कुछ नहीं कहता। तो हुण आपां गल कर लीए थोड़ी जी इन्हां दी सैलरी के बारे। तो हुण जे आपां गल करिए भी इन्हां दी सैलरी कित्थों जांदी आ, ठीक आ, तो एक्स ऑफिशियो दे वजों मिलती है, जानी कि चेयरमैन इधर वाइस प्रेजिडेंट जो चेयरमैन बनते हैं राज्य सभा के, उहदे करके इन्हां नूं मिलती आ। तो सैलरी काहदे चों जांदी आ? कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये चों इन्हां नूं तनख्वाह जिहड़ी ओह दित्ती जांदी आ। तो बच्चे एक तुहानूं ना इत्थे एक मैं होर पॉइंट दस्सण लग्या, वायलट हरी अलबा। चलो पहले नूं आपां रेज कर दईए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आ वायलट हरी अलबा। तो नाम तो कन्फ्यूज ना होयो, ठीक है, ये वूमन ने। चलो हुण इन्हां दे बारे फैक्ट देख लो। देखो बच्चे इन्हां दे बारे तुहानूं क्वेश्चन आपां वाइस प्रेजिडेंट वाले टॉपिक दे विच क्यों पढ़दे हां, क्योंकि ये एक तो लॉयर सीगे, ये लॉयर भी रह चुके हैं, जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं और पॉलीटिशियन भी रह चुके हैं। ठीक है, तो यह डिप्टी चेयरपर्सन बने सी राज्य सभा दे।
मतलब फस्ट वूमन आ जिहड़ी डिप्टी चेयरपर्सन बनी आ। क्लीयर। तो डिप्टी चेयरपर्सन बनने वाली फस्ट वूमन सी और नाल ही इंडियन नैशनल कांग्रेस की पार्टी नूं भी ज्वाइन करके पॉलीटिशियन रहे। और इन्हां दे द्वारा एक मैगजीन द बेगम, ठीक है, 1944 दे विच स्टार्ट किया गया सी द बेगम मैगजीन। तो इस तो बाद इहदा नाम इंडियन वूमनस रख दिता गया सी, जिहड़ा कि द बेगम इन्हां दे द्वारा मैगजीन स्टार्ट की गई सी। होर इन्हां दे बारे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आ, 1944 दे विच ये फस्ट वूमन ने जिहड़े हाई कोर्ट दे विच गए ने, ठीक है। तो ये लॉयर सीगे, तो हाई कोर्ट दे विच इन्हां ने केस लड़िया सीगा फुल बेंच के सामने, ठीक है। 1944 की गल है ये। राज्य सभा दे विच पहली प्रिसाइड करने वाली मतलब कि ये वूमन ने वाइस चेयरपर्सन के रूप के विच, तो मैं थोड़ा पहले ही बच्चे डिप्टी चेयरपर्सन बने ने राज्य सभा के, थोड़ा दस चुकिया। उस तो बिना इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आ कि 2007 दे विच इन्हां दी मतलब कपल फोटो कह लो तुसीं, इन्हां दी ते इन्हां दे हसबैंड, ठीक है, जोचिम अल्बा, इन्हां दोनों की कपल फोटो राज्य सभा के गलियारियां दे विच लाई गई। क्यों लाई गई? बिकॉज ये संसद दे विच जाण वाला फस्ट कपल आ, तां करके। ते 2008 दे विच इन्हां दे नाम दे उत्ते एक स्टैंप भी इशू की गई सी। ते उदों अपने प्रेजिडेंट कौन सीगे जिन्हां दे द्वारा की गई सी, तो उन्होंने बच्चे तुसीं कमेंट करके जरूर नाम दसना उन्हां दा। होप सो तुहानूं ये क्लीयर हो गया होगा भी वायलट हरी अल्बा कौन सी। तो बच्चे 20 नवंबर 1969 में इन्होंने अस्तीफा दिता सीगा, ठीक है। तो सॉरी 20 नवंबर में इन्हों की डैथ हो जाती है, 17 नवंबर में इन्होंने अस्तीफा दिता सी। तो अस्तीफा देने तो 3 दिन बाद इन्हों की डैथ हो जाती है। तो यदा करैक्ट आंसर ए सीगा। होप सो तुहानूं ये भी फैक्ट क्लीयर हो गया हो, बिकॉज UPSC PPSC ने तुहानूं इहो जिहा फैक्ट ही चकना, ठीक है। बच्चे रिलेटेड आर्टिकल देखो, 66 कादी गल करदा इलैक्शनां दी, ते 66 कादी गल करदा क्वालीफिकेशन जानी कि योग्यतावां दी, ते 67 दे विच की इन्हां दा टन्योर प्लस रिजाइन अस्तीफा। ते हटाया कादे नाल जा सकदा, आर्टिकल 67B के अकॉर्डिंगली हटाया जा सकदा राज्य सभा दे विच रख के, ते 14 दिन का पहला नोटिस देना जरूरी आ। आर्टिकल 68 इन्हां दी सैलरी सर्विसिज कंडीशन के बारे आ। आर्टिकल 69 दे विच इन्हां दी ओथ। क्लीयर। चलो बच्चे इन्ने का फैक्ट सीगे जिन्ने होप सो तुहानूं इह तां क्लीयर हो गए होणगे। अगला क्वेश्चन देखो, द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इलैक्टेड बाय द मैंबर ऑफ द इलैक्टरल कॉलेज कंप्राइजिंग, क्योंकि इन्हां दे लई एक क्लॉज बनदा ओनली इलैक्टेड मैंबर ऑफ द बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लीमेंट, ऑल द मैंबर ऑफ बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लीमेंट, ओनली इलैक्टेड, ठीक है। तो हुण बच्चे इहदे च जिहड़ा आंसर आ वो बी आ जाऊगा, क्योंकि सारे मैंबर हाउस ऑफ पार्लीमेंट दे चाहे तो लोक सभा की चाहे फिर राज्य सभा, तो दोनों दे पार्टिसिपेट इहदे च करदे ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सैकेंड हाईएस्ट डिग्नेटरी ऑफ इंडिया। हाँ बच्चे पहला आप देखा भी सैकेंड हाईएस्ट है ना, पहला प्रेजिडेंट साहब नूं छड्ड के, तो इन्होंने की पूछा पहले आप देख लीए। करैक्ट आंसर चलो पहली ऑप्शन करैक्ट आ। हैज़ नो फॉर्मल फंक्शन अटैच टू हिज ऑफिस, डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट ड्यूरिंग हिज एबसेंस, एक्ट एज द प्रेजिडेंट इफ द प्रेजिडेंट रिजाइन और रिमूवड और डाइज, एक्ट एज द प्रेजिडेंट। तो एक्ट एज द प्रेजिडेंट ये काम करते हैं, बिल्कुल सही आ। तो 1 ते 4 आपां नूं पता लग गया, 2 ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट ने। तो 4 है नहीं, ये भी गया, 4 है नहीं, ये भी गया, 4 है नहीं, ये भी गया। तो 2 ऑप्शनों के बेस के उत्ते तुसीं ये क्वेश्चन नूं सॉल्व कर सकते सी, ठीक है। हैज़ नो फॉर्मल फंक्शन अटैच टू हिज ऑफिस, बिकॉज इन्हां दे संविधान दे विच कोई ज़्यादा कामकार नहीं दस्सिया होया वाइस प्रेजिडेंट के बारे, ठीक है। तो डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट ड्यूरिंग हिज एबसेंस सही है। तो ये सारियां ऑप्शनां इहदियां करैक्ट हो जांदियां सी, पर तुसीं पहली एंड चौथी दे बेस ते ही सारियां ऑप्शनां नूं एलिमिनेट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते सी, ठीक है। तो बच्चे देखो वाइस प्रेजिडेंट के बारे मैं तुहानूं एक क्विक रिवीजन करा रहा। पहला तुसीं आ लिस्ट इत्थों स्क्रीनशॉट कर लिओ, चाहे तुसीं इहनूं दोबारा तो पढ़ लिओ एक बारी, ठीक है। तो आर्टिकल 63 की कहंदा भी साडे वाइस प्रेजिडेंट होना चाहिए
आर्टिकल 64 की कहता भी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होणगे राज्य सभा के, और आर्टिकल 65 की कहता भी एक्टिंग प्रेजिडेंट बन गए, ठीक है, जो मतलब कि प्रेजिडेंट साहब ना होण। तो सोर्स की गल करिए तो कित्थों लिया सी फॉलो किया, USA तो किया। और हुण जिहड़े करंट हैगे ने 14वें नंबर दे ने, की नाम आ जगदीप धनखड़, इदों पिछले वेंकैया नायडू 13वें नंबर दे सी। 2 बार किहड़े बने ने, राधा कृष्णन 2 बार बने, और जाकिर हुसैन भी 2 बार बने। तो ये चीज़ क्लीयर है तुहानूं। उस तो बाद मैंबर ऑफ राज्य सभा हुंदा नो, तो रिजाइन प्रेजिडेंट नूं, जे सौं चुकाउणी है वो कौन चुकाउणगे, प्रेजिडेंट। टन्योर 5 साल का, तो इलैक्शन इंडरैक्ट यानी कि पार्टिसिपेट करनगे MP ऑफ लोक सभा एंड राज्य सभा। तो री इलैक्शन हो सकती है, यस, क्योंकि राधा कृष्ण ते हामिद अंसारी 2 बार बन चुके हैं। तो मिनीमम एज, सॉरी बच्चे मैनूं लगदा मैं तुहानूं जाकिर हुसैन कहता उत्थे, ठीक है, तो हामिद अंसारी आना सी, वो 2 बार बने, ठीक है। तो मिनीमम एज तो 35 साल की पूरी होनी चाहिए है, मैक्सीमम एज तो संविधान कुछ चक्कर नहीं कहता। तो सैलरी इन्हों कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया के विचों मिलती है। उस तो बाद जे आपां गल करिए भी ये मैंबर ऑफ राज्य सभा नो, तो आर्टिकल 66 की कहता इलैक्शनां के बारे, 66(3) यदी क्वालीफिकेशन की गल करदा, आर्टिकल 67 टन्योर ते रिजाइन के बारे गल करदा। जे हटाउण की गल आ जे स्पैशल तो 67(B) दे विच आ जांदा। ते जिहड़े कृष्णकांत सीगे तां यही कल्ले इहो जे ने, ते जिन्हां दी मतलब कि डैथ आ जिहड़ी ओह ड्यूरिंग टन्योर हो जाती है, ठीक है। तो बच्चे होपसो हुण तुहानूं ये टॉपिक क्लीयर हो गया होगा। जे फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट बचदा दैन वो तुसीं बच्चे कमेंट करके इत्थों पुछ सकते हो। बाकी जिन्हां दा जिवें दा स्कोर रहा वो भी तुसीं जरूर दसना। उस तो बिना बच्चे एक लास्ट ये बारे आपां गल करनी आ। देखो जिहड़े डॉक्टर राधा कृष्णन ने आपां देखिया भी वो 2 बार बन चुके आ, और नाल ही इन्हां दे बारे पॉइंट ध्यान च रखना भी ये अंबैसडर भी रह चुके ने USR दे 49 तो लैके 1952 तक, ठीक है। तो फिर जाकिर हुसैन, फिर BB गिरी सीगे जिहड़े जाकिर हुसैन तो बाद, ठीक है। तो ये हाई कमिश्नर रहे ने श्रीलंका के। हाई कमिश्नर कित्थों दे रहे सी, श्रीलंका के 1947 तो लैके 1952 तक, क्लीयर। और उस तो बाद जे गल करिए KR नारायण की, तो जिहड़े KR नारायण ने ये चाइना यानी कि चीन के अंबैसडर रह चुके हैं 1976 तो लैके 78 तक, ठीक है। तो हामिद अंसारी 12वें नंबर दे सीगे, 2 बारी ये बन चुके हैं। और राधा कृष्णन की आपां गल कर ही चुके हैं। हुण श्री जगदीप धनखड़ जे चल रहे हैं। तो बच्चे इन्हां दे बारे इन्ने क फैक्ट सी जिहड़े उन्हां नूं तुसीं ध्यान दे विच रखना। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट फस गया दैन तुसीं कमेंट करके छड्ड सकदे हो। और जो भी तुहाडा स्कोर रहा बच्चे उन्होंने तुसीं कमेंट करके जरूर दस्सिओ। और अगर वीडियो चंगी लगी दैन वीडियो नूं लाइक जरूर करियो। जिहड़े बच्चे चैनल ते नवे चैनल सबसक्राइब नहीं किया चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।